Hello everyone. Today we are going to see next topic, that is nutrition. Okay, so let's start. First topic is nutrition. In last lecture we have seen that there are many topics in life processes. First is nutrition. Next then comes reproduction, then respiration, circulation, and lastly excretion. So reproduction is not in your syllabus right now, but we are going to see that later on. Okay, so let's start. Just a minute. So what is nutrition? What is the basic definition of nutrition, and what does the nutrition tell us about? Basically, nutrition tells us about the digestive system. It gives us a brief complement about digestive system. What is the digestive system? So first thing, okay, why do we do digestion, या फिर हमें digestion क्यों चाहिए? We need it because we need a substance that we call as energy. It is not a substance but it is a form of energy. Okay, so हमें वो energy कहाँ से मिलती है? We get that energy from nutrition, right? So see, okay, तो हमें energy कहाँ से मिल रही है? We are getting that energy from food. We are getting that energy from food in the form of substances like carbohydrates, right? Nextly, we can say that is proteins, fats, and many much, right? There are micro minerals, that is, we can say vitamins and all that. Okay, so and also, why do we need energy? Why do we need energy? We need energy because first thing, we are growing daily, right? We are going through some processes, many chemical processes in our body, that is metabolic processes. And example for metabolic processes we can take firstly as uh, example, protein. This protein is getting converted into amino acids, right? So what is this? This is a metabolic process, right? This is a metabolic process. So we do need energy for this, right? We do need energy. So first thing, for development, as we all know that protein is a basic and fundamental unit, right, of our whole entire body system, right? So therefore we need that for development. Next we can say that is synthesis. Synthesis of proteins. ये प्रोटीन बनाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, राइट? नेक्स्ट वी कैन से दैट इज ग्रोथ. Every day our cells are developing. Secondly, we are getting repair, right? अगर आपको कहीं पे चोट लगी है, that next day it will not be the same, it will be repaired, right? So वो repairment and growth कहाँ से हो रही है? By this energy, right? Okay, now we'll move further, and now next we will talk about is how do living things get their food, right? There are many types of taking their own food. तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे वो अपने food को लेते हैं. I'll just rough it. Okay, we'll move further. Next we can say is how do living things, or you can say this is the question in your NCRT. Okay, how do living things or organism get their food? How they get their food? Okay, first thing, there are many different ways. Okay, ways कौन से हैं? I'll explain you the two way. First is simple food. Okay, and second is
complex food. Now focus here for 2 minutes. I'll explain you this. See, first thing, simple food means क्या कि वो जो खाना है वो already simple form में present है and you can just directly go there and have that. Okay, and when we are talking about the complex food, then you have to convert that complex food material into simple form and then you are going to have this simple food. Getting the difference? So यहाँ पे हम लिख सकते हैं that ओके यहाँ पे पहले ये एक्सप्लेन करती हूँ फिर आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा. ओके, फर्स्टली वी विल सी द कॉम्प्लेक्स फूड. कॉम्प्लेक्स फूड एग्जाम्पल ह्यूमंस. ओके, एग्जाम्पल कौन है? ह्यूमंस. अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की या फिर डाइजेशन की डेफिनेशन देखोगे ओके इन जनरल तो आपको ये दिखेगा कि डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म. राइट, मतलब क्या कि कॉम्प्लेक्स फूड को हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? वी आर कन्वर्टिंग इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म. राइट, मतलब क्या कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है तो वो जो डाइजेशन वाला प्रोसेस होगा दो वेज राइट इसका फूड लेने का. राइट, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कॉम्प्लेक्स में कि उसे वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कन्वर्ट करेगा. क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा. जैसे एग्जाम्पल आपने बोलस खाया मीन्स आपने पीस खाया एक रोटी का. ओके, यू चीव दैट. मतलब क्या कि आपने क्या किया, आपके हाथ में जो रोटी थी उसको आपने चीव किया एंड यू कन्वर्टेड दैट इनटू अ बिट सिंपलर फॉर्म. देन वही खाना आपके पेट में गया. वहाँ पे HCl है, एसिड्स है, राइट, केमिकल्स है, एंजाइम्स है, तो उन्होंने क्या किया उसके ऊपर एक्ट किया एंड दे ऑल्सो कन्वर्टेड दैट सिंपल फूड इनटू मोर सिंपलर फॉर्म. देन वो आपके इंटेस्टाइन्स में गया, वहाँ पे भी वो उसकी चर्निंग केमिकल एंजाइमेटिक एक्शंस हुई. देन क्या हुआ कि वो जो सिंपलर फॉर्म था वो सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हुआ. गेटिंग द पॉइंट? मतलब क्या कि उसे कॉम्प्लेक्स से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सिंपलेस्ट में, ताकि बॉडी क्या कर सके, उसे एब्जॉर्ब कर सके एंड देन यू कैन हैव द एनर्जी फ्रॉम इट. राइट, एंड देन आपके वो सारे प्रोसेसेस होंगे. कौन से वाले? कि जो रिपेयर वाले प्रोसेस है एंड ग्रोथ वाला, डेवलपमेंट वाला, प्रोटीन सिंथेसिस वाला प्रोसेस फिर यहाँ से होगा. राइट, और यहाँ पे किसका रिलीज होगा? रिलीज ऑफ एनर्जी. एंड देन ये वाली एनर्जी यूज होगी आपके सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टर्म याद रखना. ऑल द सम, ओके, सम ऑफ ऑल द reactions occurring in any organism is overall considered as metabolism. उसमें दो टाइप्स होते हैं, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. ओके, आई एम गिविंग यू द क्विक रिवीजन आल्सो. सो सिंपल फूड, अभी देखो एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं प्रोटीन्स. राइट, प्रोटीन्स को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? अमीनो एसिड्स. राइट, और एक एग्जाम्पल अगर लेना है हमें तो हम ले सकते हैं इसका ले लो, चलो ग्लूकोज तो ऑलरेडी है. कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, कार्बोहाइड्रेट्स. राइट, तो कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? इनटू ग्लूकोज. ओके, बट लिसन, हमारे बॉडी में कोई भी जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, ओके, एनी, चाहे ये हो या फिर इसको छोड़ के और जितनी भी प्रोसेस है, अगर इवन ये जो आपने माउथ में वो खाना डाला था उसको अगर हम च्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सलाइवा प्रेजेंट है. सलाइवा में क्या है? एक एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज. धीरे धीरे हम पढ़ेंगे उसे. ओके, अभी अगर नहीं समझ में आया तो जस्ट नोट इट डाउन कि एक एंजाइम है. ओके, तो वहाँ पे क्या है? एंजाइम है. यहाँ पे क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए एंजाइम. राइट, ये कन्वर्ट करने के लिए, बिना एंजाइम के वो कन्वर्ट होगा ही नहीं. हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही है उसे क्या चाहिए होता है? एक एंजाइम चाहिए होता है. ओके, एक स्टेटमेंट यू कैन जस्ट राइट इट डाउन दैट एवरी process in any organism is carried out by a particular enzyme. Okay, अगर वो एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रोसेस कभी 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 नहीं होगा. गेटिंग द पॉइंट? ओके, नेक्स्ट विल सी सिंपल फूड. सिंपल फूड की जब बात आती है तो इसका अपोजिट है. यहाँ पे हम कितना सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे एंजाइम चाहिए, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है इनटू कॉम्प्लेक्स का सिंपलेस्ट में, यहाँ पे एंजाइम्स है, बहुत कुछ, मतलब मेटाबॉलिज्म पूरा वर्कआउट कर रहा है. राइट, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए.
किसमें, कॉम्प्लेक्स में। दिस इज मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, आप लिख भी सकते हो, ओके, बिकॉज हर पॉइंट में यहाँ पे लिख नहीं सकती, ओके, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एवरी पॉइंट, ओके। अगर हम सिंपल की बात करें, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखते हैं, यू विल बी लाइक मोर ऑफ अंडरस्टैंडेबल दैट वे। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं CO2, एग्जाम्पल CO2, H2O, ओके। या फिर हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक रिसोर्सेस, एग्जाम्पल, ओके। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, ह्यूमंस लिया था, राइट। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं ट्रीज। जब हम ट्रीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ट्रीज की जब बात कर रहे हैं, तो ट्रीज क्या करती है, इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। वाटर में फिर वो मिनरल्स वगैरह वो प्रेजेंट होते हैं, देन वो आगे की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट, सॉरी आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, एंड क्या प्रेजेंट है, वाटर। ये नेचर में एज इट इज प्रेजेंट है, राइट। वो प्लांट क्या करेगा, CO2 लेगा, वाटर लेगा, एंड क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, राइट। देन हम क्या करेंगे, एज अ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, राइट। ये कौन है, ट्रीज आर ऑटोट्रॉपिक, राइट। ट्रीज कौन है, ऑटोट्रॉपिक, एंड ह्यूमंस कौन है, वी आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉपिक। अब हमें ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक क्या है, हमें पता है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपना फूड बनाने के लिए, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक, एंड द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट synthesize their own food and are dependent on other organisms for their food are called as heterotropic organisms, right? थोड़ा सा स्लो डाउन करो एंड यू कैन जस्ट राइट दिस डेफिनेशंस। आगे है वो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, वी आर गोना सी दैट इन डिटेल, बट करंटली, ओके। चलो विल मूव फर्दर। यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है ब्रोकन डाउन। अगर कन्वर्जन को एक और मैं वर्ड दूँ आपको, तो दिस इज ब्रोकन इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। गेटिंग द पॉइंट, ओके। नेक्स्ट थिंग, एंजाइम या फिर आप बोल सकते हो कैटलिस्ट। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैटलिस्ट एंड एंजाइम, आगे देखते हैं, ओके। बट वापस आते हैं इसके ऊपर, ओके। टॉपिक देखो, फर्स्ट थिंग, CO2 एंड H2O से मिलके क्या बना, ग्लूकोज। मतलब क्या कि ओके, इसका और एग्जांपल अगर आपको चाहिए, एग्जांपल सम बैक्टीरियाज, राइट, वो क्या करते हैं कि दे आर डिपेंडेंट ऑन इनऑर्गेनिक फॉर्म, ओके। जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एग्जाम्पल नाइट्रोमोनास वगैरह। अगर इतना डीप हमें नहीं जाना, नाइट्रोमोनास एग्जाम्पल, ओके, याद नहीं रखना, बट एक जस्ट आपको जनरल पॉइंट बता। सम बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, नेचर से उन्हें वो क्या लेते हैं, नाइट्रोजन, एंड उससे वो अपना खाना बनाएंगे। गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फूड में किस क्या हुआ कि CO2 लिया, H2O लिया एंड ग्लूकोज बनाया, राइट। एंड देन दे विल यूटिलाइज दिस ग्लूकोज फॉर द फॉर्मेशन। ग्लूकोज का क्या होगा, utilization for energy, right। इससे क्या बनेगी, उसकी एनर्जी बनेगी, एंड देन आगे जाके क्या होगा, उसके सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे, ओके। सो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। अभी यहाँ पे आते हैं कॉम्प्लेक्स फूड के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट, ओके। एंड ये कैसे हमें हेल्प करती है इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ energy production, digestion, nutrition overall, okay. Okay, just note it down in 2 minutes, we'll see further. Okay, so as we all know, हमें आगे पढ़ना कौन सा टॉपिक है, कैटलिस्ट एंड एंजाइम। देखो दो टॉपिक्स हैं, एक क्या है, वन इज कैटलिस्ट, एंड नेक्स्ट क्या है, दैट इज एंजाइम। इसे मैं थोड़ा ऊपर लिखती हूँ बिकॉज एंजाइम इज अ बिगर टॉपिक, ओके। एंजाइम,
देखो, फर्स्ट थिंग, कैटलिस्ट एंड एंजाइम का काम सेम है. ओके, व्हाट दे डू, कैटलिस्ट इंक्रीज द rate of reaction, and also enzyme does the same thing, increase the rate of reaction. ये दोनों सेम करेगी. अगर देखोगे आपकी दोनों का काम क्या है, दोनों का फंक्शन सेम है. तो मैम डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? तो डिफरेंस ये है कि अगर आप देखोगे, ओके आई टेल यू दी वन थिंग, अगर एग्जाम्पल हमें लेना है, सो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल दैट, लेट मी थिंक, कैटलिस्ट का एग्जाम्पल आपके लेवल पे मुझे सोचना है ना, तो आपके लेवल पे जैसे एग्जाम्पल ले लो, ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बी. ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, विल यूज सम मेटल आयन. ओके, या फिर सिंपल सब्सटेंसेस, या फिर हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज अ प्रमोटर. ओके, मीन्स क्या कि यहाँ पे अगर हम देखें कैटलिस्ट में, तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस. जैसे आपने ये क्या है, ये मेटल है, ये फेरस क्या है, मेटल, राइट. तो ये क्या कर रहा है, ए से बी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है. ये क्या कर रहा है उसका, अगर वहाँ पे मतलब आयरन है, तो वो क्या करेगा, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा. अगर आयरन वहाँ पे नहीं होगा तो वो रिएक्शन होगी जरूर. देयर इज नो पॉइंट कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसके रिएक्शन में. अगर वहाँ पे फेरस नहीं होगा, राइट, मतलब आयरन वहाँ पे अगर नहीं हुआ, तो वहाँ पे वो प्रोसेस होगी, बट उसका रेट कैसा होगा, मतलब उसकी स्पीड कैसी होगी. रेट मीन्स क्या, रेट मीन्स स्पीड. ओके, स्पीड ऑफ रिएक्शन. तो अगर वहाँ पे आयरन नहीं हुआ तो ए का कन्वर्जन बी में होगा डेफिनेटली, बट उसका रेट या फिर स्पीड कैसे होगी, स्लो होगी. बट जैसे ही वहाँ पे आयरन आ गया, उसकी रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. एंड ऑल्सो अगर हम बात करें कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या होती है, दे आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. वो क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं. कैसे एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ प्रमोटर, कि वो जो रिएक्शन को प्रमोट करेंगे कि ए से बी में कन्वर्ट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर हम एंजाइम की बात करें, ओके, या फिर ओके, सो यू कैन जस्ट राइट अ डेफिनेशन ऑफ इट. एंजाइम, अ सब्सटेंस usually produced. ओके, यहाँ पे कैटलिस्ट क्या था, इट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट एक्ट एज अ प्रमोटर. और यहाँ पे एंजाइम क्या है, सब्सटेंसेस दैट यूजुअली produced by plant and animals, which helps a chemical change to happen quickly. राइट, मीन्स क्या कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा. बट ये कहाँ पे मिलेगा आपको, यूजुअली फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो आपको ये नेचर में भी मिल जाएगा. राइट, दिस इज फाउंड फ्रीली इन नेचर. बट ये कौन प्रोड्यूस करेगा, ओके, कैटलिस्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये फ्रीली मिल रहा है आपको नेचर में. बट एंजाइम आपको कहाँ मिलेगा, दैट विल यू विल गेट एंजाइम इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स. मीन्स वो प्रोड्यूस करेंगे उसे जब जरूरत होगी. अगर मुझे एक सब्सटेंस है, जैसे प्रोटीन मुझे कन्वर्ट करना है अमीनो एसिड्स में, तो देन आई बाय माई सेल्फ, ओके, मेरी बॉडी क्या करेगी, प्रोटीज नाम का एक एंजाइम सीक्रेट करेगी, जिससे क्या होगा, प्रोटीन कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड्स. ओके, एग्जाम्पल ले लो प्रोटीन जो आपके लेवल का भी है. ओके, प्रोटीन getting converted into amino acids. ओके, तो फिर ये क्या है यहाँ पे, प्रोटीएज. तो ये क्या है, एक एंजाइम है. गेटिंग, ओके. अगर एग्जाम्पल और लेना है आपको, मैंने और क्या दिया था, कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स का अभी नहीं लेते फिलहाल, आप ले लो लिपिड्स.
नहीं, लिपिड्स भी नहीं लेते आपके लिए वो लिपिड्स, फिर आपको कंफ्यूजन होगा व्हाट इज द लिपिड मैम। तो ओके, फिलहाल इतना लगता है आपको, ये पॉइंट समझाना था मुझे। एंजाइम, तो ये प्रोटीएज क्या है, एंजाइम है, राइट। एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल आपको देना है मुझे, दैट इज नहीं, ठीक है, ओके, डन, इतना ही। देन वी कैन से दैट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस enzyme is also called as biocatalyst। ये क्या है सर, ये कैटलिस्ट है, बट दिस इज बायोकैटलिस्ट। बायो मीन्स क्या, बायो मीन्स होता है लाइफ, वी ऑल नो दैट, राइट। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ मीन्स ऐसा कैटलिस्ट जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एक लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, लाइफ, या फिर वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा कैटलिस्ट जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एक लिविंग या फिर लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे, विल से दैट एंजाइम, ओके, एज एंजाइम। नेक्स्ट वी कैन से used in biological reactions and life processes to carry out reaction and rate increase करता है, मैंने वो ऑलरेडी आपको लिख के दिया है। तो ये कहाँ पे यूज होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम, सेम ही थिंग है, राइट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रेफर कर रही हूँ एनसीईआरटी, तो मुझे टर्म्स मिल रहे हैं, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, ओके। ये पूरा एज पर आपके एनसीईआरटी चल रहा है, ओके, यू कैन जस्ट सी दैट। नेक्स्ट टॉपिक इज, ओके, so this was all about catalyst and biocatalyst, okay। तो एक बार just see this कि इसमें कोई डाउट है या नहीं है, okay। I'll just give a brief again। Catalyst is inorganic substances that act as a promoter। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, नेचर में फ्रीली मिल जाएंगे, okay। एंजाइम कहाँ पे मिलेगा, it is produced, जब जरूरत होगी तब जाके प्रोड्यूस होगा, कहाँ पर, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। गेटिंग द पॉइंट, ओके। एग्जाम्पल दे दिया मैंने, it is also called as biocatalyst, okay, good job। Sorry, I'll just rough it down। Okay, next topic is types of nutrition। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। मैं आपको एक बार वो फिर से बताती हूँ, ओके, सो यू विल बी नॉट दैट मच कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, ओके। सो सी, फर्स्ट थिंग इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, autotropic nutrition, and second thing is heterotropic nutrition। राइट, ओके। ऑटोट्रॉपिक में एज सच कोई आगे का ये नहीं है, हम जैसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, classification, okay, but heterotropic have its own classification, that we can say it's saprophytic and parasitic heterotropic nutrition, saprophytic heterotropic nutrition, and next is holozoic heterotropic nutrition। तो सैप्रोफाइटिक जो है वो कौन से टाइप का न्यूट्रिशन है, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक इज आल्सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक इज आल्सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके। दिस इज द बेसिक, ओके। अगर हम देखें ये किस में होता है, दिस इज जनरली ऑकरिंग इन ट्रीज, राइट। दिस इसका एग्जाम्पल ले लो आप, ओके। हेटेरोट्रॉपिक मीन्स क्या कि ऐसे, ओके, फर्स्टली डेफिनेशन, ऑटोट्रॉपिक अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, the organisms that
ओके, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, राइट, वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस या फिर सिंथेसाइज देयर ओन फूड, आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम किससे, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, राइट, वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फ्रॉम नेचर। और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल वाटर, CO2, इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज, राइट, हमने अभी देखा ये एग्जाम्पल, राइट। नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखती हूँ, द ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंडेंट on other organisms, other organisms in the sense that is we can say that autotrophic organisms, okay, autotrophic organisms for their food, उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, जनरली नॉट हेट्रो या फिर ऑटो भी हो सकता है, ओके, बट ओके यहाँ पे ये स्पेस खाली रखते हैं एंड टेल यू कि वो किस किस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ओके, ऑटोट्रॉपिक के ऊपर होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट होते हैं, होलोजोइक का एग्जाम्पल अगर ले ले हम तो ह्यूमंस या फिर कैट, राइट, डॉग, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, पूरा बाइट, ओके, होल बाइट वो अपने मुंह में डालते हैं एंड देन दे डाइजेस्ट द एंटायर प्रोसेस ऑफ, देन द डाइजेशन का प्रोसेस ऑकर होता है, उन्हें हम कैसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वी से दैट एज होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। अगर पैरासाइटिक की बात करें तो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स, ये लास्ट लेक्चर में भी देखा था, okay, I'll just rough this part so I can utilize this for all this, okay, ओके, तो सैप्रोफाइटिक का डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो सैप्रोफाइटिक मीन्स द ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग या फिर दे आर हैविंग देयर डाइजेशन का प्रोसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, ओके, सो इन सिंपल फॉर्म वी कैन जस्ट राइट दैट द ऑर्गेनिज्म that are surviving on dead and decaying matter, right, matter, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, we say that as saprophytic, okay, एग्जाम्पल इसका है फंगस, फंगस, ओके, फंगस का एग्जाम्पल ले लो, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम्स, ओके, ये यहाँ से डेड एंड डिकेइंग मैटर को ब्रेक करेंगे एंड दे विल देन दे विल एब्सॉर्ब द फूड फ्रॉम देयर, ओके, एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर एंड दे विल हैव देयर ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, उसे हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक। अगर पैरासाइटिक की बात करें, ओके, ये सैप्रोफाइटिक, एक सेकेंड आपको फिर से कंफ्यूजन होगा, सैप्रोफाइटिक, ओके, पैरासाइटिक की अगर बात करें तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन derive nutrition from living organism, एग्जाम्पल वो प्लांट हो सकते हैं या फिर कोई एनिमल हो सकता है, ओके, विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग और हार्मिंग देम, राइट, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, वी से दैट इट इज अ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, क्यों, क्योंकि वो उसके ऊपर रहता है, दे ड्वेल ऑन दैट ऑर्गेनिज्म, अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एंड वो वहां से न्यूट्रिशन ले रहे, राइट, एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल इज कस्क्यूटा प्लांट, ओके, कस्क्यूटा, then we can say as teak,
लाइसिस, ये लाइसिस वाला एग्जांपल लास्ट लेक्चर में भी देखा था. लीचेस, टेपवर्म, राइट. कस्क्यूटा इज अ प्लांट, राइट. ये क्या करेगा? कस्क्यूटा प्लांट, कस्क्यूटा प्लांट की स्टोरी क्या है बाय द वे? जाना गूगल पे जाना, ओके, एंड यू कैन जस्ट सर्च फॉर द स्टोरी ऑफ कस्क्यूटा प्लांट. आपको दिखेगा कि वो किस तरह से पैरासाइटिक है. ओके. अगर मैं आपको बताऊँ लाइसिस का, तो लाइसिस क्या करती है? अगर हम देखें एग्जांपल, मोस्ट ऑफ दी जो आपने सुना होगा, लाइसिस ये लीव करती है कहाँ पर? ह्यूमन हेयर्स में, राइट. जनरली इन ह्यूमन हेयर्स या फिर एनिमल हेयर्स में. तो फिर वहाँ पे वो अपना मीन्स वो सेटल डाउन हो जाती है वहाँ पर. ओके. एंड देन वो वहां से न्यूट्रिशन सब करती है. बट क्या वो ह्यूमन को या फिर उस एनिमल को कोई हार्म होता है? नहीं, उसे कोई हार्म नहीं होता. वो बस उसके ऊपर रहती है. एंड शी और ही, जेंडर कहाँ पे डिसाइड कर रही हूँ मैं. ओके. सो दैट एनिमल या फिर लाइस, ओके, वो वहां से क्या करती है? अपना न्यूट्रिशन सक ऑन करती है. एंड दैट ऑर्गेनिज्म जस्ट लिव देयर. ओके. अगर हम बोले होलोजोइक का, तो होलोजोइक इज सिंपल. टेक एन होल मटेरियल एंड देन वो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करता है सिंपल में. तो जो हमने कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन देखा अभी थोड़ी देर पहले, तो वो किसका एग्जाम्पल है? होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स का. ओके. एग्जाम्पल है इसका, आप अमीबा भी बोल सकते हो. अमीबा, बट अमीबा में सूडोपोडिया होता है, राइट. ओके. एंड ओके. और एक चीज कि यहाँ पे होलोजोइक में वो कौन से कितना फूड ले सकता है, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करता है, फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है, राइट. मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स फूड खाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसके बॉडी साइज पर, सॉरी बॉडी डिजाइन वी कैन से, एंड सेकेंड थिंग बॉडी फंक्शनिंग. उसकी बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन कर सकती है. जैसे अमीबा है एंड एग्जाम्पल ह्यूमंस है, तो जो हम खाना खा रहे हैं क्या वो अमीबा खाना खा सकता है? नहीं. अमीबा का एक अलग बॉडी डिजाइन है, सो वो एक अलग वे में वही होलोजोइक प्रोसेस फॉलो करेगा कि वो जाएगा अपने सूडोपोडिया ऐसे करेगा, एंड देन दैट ऑर्गेनिज्म अमीबा विल जस्ट पुश दैट फूड इनसाइड, एंड फिर वो पूरा सारा एंजाइमेटिक प्रोसेस होगा. सो ये किस पे डिपेंड करता है? उसके बॉडी डिजाइन पे एंड बॉडी फंक्शन पे. पॉइंट क्लियर हुआ? ओके. ओके. सो आगे जो हमें देखना है दैट इज, ओके, तो ये था हमारा पूरा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का एक बेसिक क्लासिफिकेशन जो हमें पढ़ना था. ओके. दिस इज कंप्लीटेड. जो हमें आगे देखना है दैट इज ऑटोट्रॉपिक. ये वाला पॉइंट थोड़ा डिटेल में देखना है, देन वी विल सी फॉर द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके. सो ये सब ने याद रखना है, एग्जांपल्स याद रखने हैं, डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है. ओके. ओके. Going to see the type of nutrition. First topic that is autotrophic nutrition. So let's see. Okay. Autotrophic nutrition. And one thing कि मैम बीच में ऑटोट्रॉपिक कैसे स्टार्ट कर दिया? नहीं भाई, बीच में नहीं स्टार्ट किया. जस्ट गो एंड सी द प्रीवियस लेक्चर, तो आपको पता चलेगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तक हम कैसे पहुंचे. ओके. चलो विल मूव फर्दर. बेसिक डिफरेंस जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने देखा था द organism that can synthesize their own खुद का खाना, own food is called as ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो हमारे घर में सिर्फ मम्मी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है बिकॉज वो खुद का खाना खुद बना रही है, हम तो नहीं बना रहे. वी आर डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. सो वी कैन से दैट वी आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, है ना? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता. वी आर सेइंग इट बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर. तो नेचर में अगर आप देखोगे तो सिर्फ देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल जैसे कि ट्रीज, सम बैक्टीरिया जो क्या करती है? खुद का खाना खुद बना रही है. बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है? दे आर डिपेंडेंट ऑन समवन फॉर देयर फूड,
राइट। तो फिर ये खाना किससे बना रही है? दे आर मेकिंग द फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं एंड मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, सो आई डोंट थिंक सो किसी आपको रट्टा मारने की जरूरत है। इनऑर्गेनिक मतलब क्या? इनऑर्गेनिक मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें क्या प्रेजेंट है, कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स अदर देन कार्बन, एलिमेंट्स अदर देन कार्बन, तो वो सब क्या है? इनऑर्गेनिक। एंड ऑर्गेनिक मीन्स द बेसिक कंपाउंड, उसमें क्या होगा? हमारा प्रिय कार्बन। तो इसमें कार्बन होगा क्या? नहीं, इसमें कार्बन नहीं होगा। तो एग्जाम्पल, एक सेकेंड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं बोल सकते, इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक बोल सकते, इनऑर्गेनिक नहीं बोल सकते। आई गेस मैंने लास्ट लेक्चर में भी इनऑर्गेनिक लिखा था क्या? नहीं, लास्ट लेक्चर में अगर मैंने इनऑर्गेनिक लिखा था तो जस्ट गो एंड करेक्ट दैट, ओके। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक होगा एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक, दोनों होंगे, ओके। इनऑर्गेनिक भी होगा एंड ऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक में CO2 एंड इनऑर्गेनिक में H2O, राइट। तो अगर इनऑर्गेनिक भी लिखा है तो भी सही है, बट अनऑर्गेनिक भी लिखा है तो भी सही है, बट अगर आप देखोगे तो ये क्या है? ये क्या है? ऑर्गेनिक, एंड ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो वी कैन से वो किससे बनाएगा? फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंस, इससे वो क्या बनाएंगे? दे विल प्रोड्यूस एनर्जी। एंड देन आगे जाके क्या होगा? एनर्जी जो बनेगी, ओके, एनर्जी जो बनेगी उससे वो सारे अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करेगा, ओके। तो ये प्लांट्स कैसे करते हैं? अगर हम स्पेसिफिकली अगर प्लांट्स का देखें तो प्लांट विल टेक दी CO2, देन दैट प्लांट विल टेक H2O। CO2 कहाँ से लेगा? एयर से लेगा। H2O कहाँ से लेगा? रूट्स। एंड देन इससे क्या बनाएगा वो? अपना हमारा प्रिय कार्बोहाइड्रेट। मैम कल आपने यहाँ पे ग्लूकोज लिखा था, सही बात है। तो ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा? ग्लूकोज बनाएगा, जैसे, ओके। एंड ये तो हो गया हमारा, ये कन्वर्ट करेगा। तो ये कन्वर्जन में कोई ना कोई एंजाइम लगेगा, या राइट, यहाँ पे क्या लगेगा? कोई ना कोई एंजाइम लगेगा, ओके। अभी वो एंजाइम कहाँ पर है? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट्स में अगर कोई भी ERT, कन्वर्ट, एन यहाँ पे लिख लो, ओके। मैं ठीक से लिख देती हूँ, कन्वर्ट, ओके। तो CO2 फ्रॉम एयर, H2 फ्रॉम रूट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वो किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। और ये सारी प्रोसेस हो कहाँ पे रही है? हमारे प्रिय पत्तों में, लीव्स, राइट, लीव्स में होगी। एंड देन जाके ये जो ग्लूकोज है, ये इससे क्या बनेगा? हमारा एनर्जी बनेगी। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको नीचे लेके जा रही हूँ, ओके। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ो, ओके। तो देखो, अभी मुझे बताओ, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ओके, ये बॉडी में स्टोर होता है, राइट। एग्जाम्पल, अगर आपने फास्टिंग की है किसी दिन, आपने अगर फास्टिंग की है, आपने खाना नहीं खाया, ओके, तो फिर क्या होता है कि आप इसे मर जाते हो क्या? क्या बोल रहे हो मैम? ऐसे मतलब हम जिंदा रहते हैं, फिर भी अगर एक दिन खाना नहीं खाया, 2 दिन खाना नहीं खाया, 3 दिन खाना नहीं खाया हमने, स्टिल हम एनर्जी लूज करते हैं, मतलब ऐसा वी फील वेरी वीक, बट स्टिल वी आर अलाइव। हमारे बॉडी के अंदर जो भी नेसेसरी प्रोसेसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, वो चालू रहती है, राइट। तो वो कैसे होती है? क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में स्टोर होता है फॉर्म, मतलब एनर्जी जो होती है वो ऑलरेडी स्टोर होती है। एक्स्ट्रा की जो एनर्जी है, अगर एग्जाम्पल हमें हर रोज 40 किलो कैलोरी चाहिए, बहुत चाहिए होते, मैंने एग्जाम्पल दिया। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसे 40 किलो कैलोरी चाहिए, ओके, पर डे, बट उसने कितने बनाए? 60, तो वो 40 यूज करेगा एंड 20 का क्या करेगा? स्टोर करेगा, राइट। तो फिर अभी एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल था बाय द वे, कोई सीरियसली नहीं लेगा उसको, ओके। सो अभी देखो, हम स्टोरेज का पॉइंट देखते हैं, इसे मैं रफ कर रही हूँ, ओके। सो एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, दैट इज स्टोरेज ऑफ, जो भी है, ओके, स्टोरेज ऑफ हमारा जो भी न्यूट्रिशन है, हम उसका बॉडी में स्टोरेज कैसे करते हैं, ओके। तो हम वो वाला टॉपिक देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट अ मिनट, ओके। तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी। तो देखो,
हो सकता है कि कोई प्लांट को अपनी एनर्जी स्टोर करनी है, या फिर हो सकता है कि कोई एनिमल है उसे उसकी खुद की एनर्जी स्टोर करनी है। तो फर्स्ट थिंग, जब उसे स्टोर करना है तो वो स्टोर क्या कर रहा है मुझे बताओ, वो क्या करेगा, ग्लूकोज को स्टोर करेगा, राइट, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट। जब हम कोई भी न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो एक्टिव अगर हम देखें क्या है, मतलब ऐसा कि मेजरली हम किसकी बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो एग्जाम्पल, कोई एनिमल है, ओके, एनिमल, और उसे क्या करनी है, उसकी उसकी एनर्जी स्टोर करनी है, तो वो किस फॉर्म में करेगा, दैट एनिमल विल स्टोर हिज, ओके, हिज और हर, या हिज और हर, एनिमल में जेंडर होता है, तो हिज और हर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इज दैट राइट? या। एंड अगर हम बात करें कोई प्लांट है, तो वो प्लांट उसकी एनर्जी को अगर उसे स्टोर करना है तो वो क्या करेगा, दैट एनिमल विल यूज द स्टार्च फॉर्म। किस फॉर्म में स्टोर करेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो अभी मुझे बताओ ये क्या है, स्टार्च, और ये ग्लाइकोजन क्या है। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इनएक्टिवली इन आवर बॉडी, ओके, तो वो कौन सी है इन आवर बॉडी, ग्लाइकोजन, और प्लांट्स की बॉडी में स्टार्च। तो ये क्या है, इनएक्टिव, ये क्या है, इनएक्टिव, राइट, या। तो ये किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें, ओके, अगर एग्जांपल एटीपी, तो मुझे बताओ, अगर मुझे, ये तो इनएक्टिव है, राइट, बट अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं किस फॉर्म में यूटिलाइज करूंगी, आई यूटिलाइज दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब ये क्या है, ये एक्टिव फॉर्म है, राइट, सही है। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये तो स्टोर है मेरे बॉडी में, राइट, मैंने खाना खाया था, कार्बोहाइड्रेट, आई यूटिलाइज्ड इट, एंड मैंने उसको किस फॉर्म में स्टोर किया मेरे बॉडी में, ग्लाइकोजन या फिर स्टार्च। अगर प्लांट होगा तो वो स्टार्च के फॉर्म में करेगा, अगर वो एनिमल है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। बट अभी ये स्टोर्ड है, इनएक्टिव है, मैं उसे यूज कर सकती हूँ क्या, नहीं, आई कैन नॉट यूटिलाइज दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू कन्वर्ट दिस ग्लाइकोजन इनटू एटीपी और दिस स्टार्च इनटू एटीपी, तब जाके मैं क्या कर पाऊंगी, मैं यूटिलाइज कर पाऊंगी। तो अगर मुझे स्टार्च को एटीपी में कन्वर्ट करना है तो मैं इस प्रोसेस को बोलूंगी ग्लाइकोलिसिस। तो इससे क्या जनरेट होगी, एटीपी जनरेट होगी। और अगर मैं ग्लाइकोजन को एटीपी में कन्वर्ट कर रही हूँ, देन आई से दिस प्रोसेस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। अगर मुझे स्टार्च को एटीपी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या बोलूंगी, ग्लाइकोलिसिस। और अगर मुझे ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना है फ्रॉम इनएक्टिव फॉर्म टू एक्टिव फॉर्म ऑफ एटीपी, तो मैं उसे क्या बोलूंगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू बर्थ या फिर न्यू बॉर्न, ओके। जो भी नए नए बच्चे पैदा होते हैं, वी से देम एज न्यूनेट्स, दीज आर ऑल न्यूनेट्स। तो मतलब कैन, न्यू मीन्स कैन न्यू बर्थ, एंड जेनेसिस मीन्स जनरेशन, okay. Glycolysis, glyco means glucose, lysis means break down, same with glucose, neo means birth, and genesis means generation. अब यहाँ पे जगह नहीं है, so you can just write that birth, okay. मैं हर एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ। ATP means adenosine ट्राइफॉस्फेट, आई डोंट थिंक सो किसी को नहीं आता होगा, बट इन केस दैट इज देयर समवन, तो फिर वो क्या कर सकता है, इसे रेफर कर सकता है। गेटिंग द पॉइंट, ओके। ओके, सो विल जस्ट मूव फॉरदर, ओके, विद द फोटोसिंथेसिस। आई गेस कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ओके। तो इसे मैं रफ करती हूँ। ओके, सो फोटोसिंथेसिस, अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बाय द वे, फोटोसिंथेसिस, राइट। अभी देखो, फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें, फर्स्टली हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक बड़ी सी डेफिनेशन है,
बिकॉज आपको अगर फोटोसिंथेसिस पूछे तो आपको आना तो चाहिए, राइट? तो देखते हैं, चलो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of carbon dioxide and क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, and water is converted into carbohydrate. Is converted into carbohydrate in the presence of, किसके presence में? In the presence of sunlight, right? In the presence of sunlight and chlorophyll for providing food to plant. किसमें हो रहा है ये process? To plant is called as photosynthesis, right? तो अभी देखो, मैं डेफिनेशन को फर्स्टली थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, देन हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. ओके, सो देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन. किसका कन्वर्जन? कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके, क्या हम कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट को ले रहे हैं, हम वाटर को ले रहे हैं एंड कन्वर्ट कर रहे हैं. किसमें? इनटू, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में. एंड सेकेंडली इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. पॉइंट है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. फॉर किसके प्रोडक्शन के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एंड इस प्रोसेस को कंबाइनली हम क्या बोल रहे हैं? वी आर सेइंग इट एज फोटोसिंथेसिस. मीन्स क्या? फोटो मीन्स क्या होता है? अगर देखोगे आप, फोटो मीन्स होता है लाइट. सिंथेसिस मीन्स क्या? सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, प्रोड्यूस, राइट? तो लाइट के प्रेजेंस में, लाइट से हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? लाइट से हम क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. मीन्स लाइट के हेल्प से. यहाँ पे सनलाइट यूज कर रहे हो आप, ये क्या है? सनलाइट है. तो सनलाइट के हेल्प से अगर हम कुछ सिंथेसिस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे लाइट के हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट. या क्या है? ये क्या है? ये एनर्जी है. ये क्या है? फूड है, राइट? या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? एग्जाम्पल, जो रेडिली फॉर्म है वो क्या है? ग्लूकोज. तो आप एनर्जी बोलो, फूड बोलो, ग्लूकोज बोलो, इज द सेम थिंग. गेटिंग? तो कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करते हैं, देन उससे क्या बनती है? हमारी प्रिय एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है, विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. ओके, तो ये है हमारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस हम आगे और डिटेल में देखेंगे, बट एक पॉइंट मुझे आपको बताना है. ओके, सो विल जस्ट सी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, एंड टिल देन हैव फन, बाय.